Hello students. Today we are going to start chapter 2 from the Hornbill, and the title of the chapter is "We are not afraid to die if we can all be together." Students, this chapter is written by Gordon Cook and Ellen West. And let me tell you something about the author. Gordon Cook is a Canadian Olympic sailor, and he was born on 3rd December 1978 at Toronto in Canada. And Ellen West was a legal trainer. He was born on 18 November 1923, and he was born at East Derry in New Hampshire. Children, this chapter is really very adventurous, and in this chapter the author tells us about a businessman who was 37 years old. So the author tells us that the businessman who was 37 years old and his wife had a dream. They wanted to undertake the same voyage around the world as the explorer Captain James Cook undertook 200 years ago. बच्चों, ऑथर ने हमें बताया है कि ये जो चैप्टर है एक 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन के बारे में है। जैसा कि उस बिजनेसमैन और उसकी वाइफ ने एक सपना देखा। उनका ये ड्रीम था कि वो एक ऐसे राउंड द वर्ल्ड की वॉयज करना चाहते थे, एक ऐसी संसार के समुद्र की यात्रा करना चाहते थे जो कि एक महान एक्सप्लोरर कैप्टन जेम्स कुक ने 200 वर्ष पहले की। In this lesson, let us read how a mighty wave broke over them and damaged the ship। और इस लेसन में हम देखेंगे कि किस तरह से समुद्री यात्रा के दौरान माइटी वेव्स ने, समुद्र की शक्तिशाली लहरों ने उनकी बोट को डैमेज कर दिया। बट दे स्ट्रगल्ड ऑन एंड वर सेव्ड। बट दे स्ट्रगल्ड फॉर देयर लाइव्स एंड सेव्ड देम फाइनली। लेकिन उन्होंने अपने जीवन को बचाने के लिए समुद्री लहरों से संघर्ष किया और अंत में सफल हुए। So children, now we are going to start the chapter, and the businessman who was 37 years old is the narrator of this chapter. So in July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Sudan 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook। तो देखिए, नरेटर ने हमें बताया है कि it was a thing of about 1976 की बात थी। 1976 में कहता है मेरी पत्नी मेरी, मेरा बेटा जोनाथन who was 6 years old, जो कि 6 वर्ष का था, and daughter Sudan who was 7 years old, and the narrator himself set sail from Plymouth, England। कहता है मैंने अपनी वाइफ मेरी, बेटे जोनाथन और बेटी सुजैन के साथ जुलाई 1976 में प्लाईमाउथ, इंग्लैंड से समुद्री यात्रा आरंभ की to duplicate the round the world voyage in order to repeat
the sea voyage, round the world sea voyage that was undertaken 200 years ago by Captain James Cook. कहता है कि मैंने प्लाईमाउथ इंग्लैंड से समुद्री यात्रा आरंभ की उस राउंड द सी वर्ल्ड वॉयज को डुप्लीकेट करने के लिए, जो कि 200 वर्षों पहले कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा की गई। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरी एंड आई, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer. कहता है for the long time they had a dream. The narrator and his wife had a dream of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters, and for the last 16 years they kept on practicing their boats, their journey in the British sea waters. और कहता है पिछले 16 वर्षों से हम लगातार अपने देश के समुद्रों में समुद्री यात्रा की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि हम अपने समुद्रगामी कौशल पर विजय प्राप्त कर सके या सफल हो सके। Our boat Bill Parker, a 23-meter 30-ton wooden hull dory, had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. तो देखिए, the name of their boat was Bill Parker. जो उन्होंने इस राउंड द वर्ल्ड सी वॉयज को डुप्लीकेट करने के लिए जो इन्होंने अपनी बोट बनाई, उसका नाम बिल पाकर रखा। तो कहते हैं कि जो हमारी नाव थी जिसका नाम बिल पाकर था, तो हियर द ऑथर हैज गिवन ए डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज बोट, अपनी बोट का डिस्क्रिप्शन उसने दिया है कि दैट वाज 23 मीटर 30 टन वुडन हल डोटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट। कहते हैं हमारी नाव जिसका नाम बिल पाकर था 23 मीटर लॉन्ग, 23 मीटर लंबी थी, 30 टन भारी लकड़ी के पेठा वाली सुंदर थी, जिसे व्यवसायियों ने बनाया था। दैट वाज प्रोफेशनली बिल्ट एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द roughest weather। और कहता है हमने उसमें सारे सामान को फिट किया और तूफानी मौसम में परखने के लिए कई महीने का समय व्यतीत किया। मीनिंग दैट बाय द नरेटर हैड स्पेंट मंथ्स in order to test his boat in the roughest weather. So children, the first leg of our planned 3-year 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. तो देखिए, the duration of their planning journey was 3 years. उनकी जर्नी का जो ड्यूरेशन था वो 3 वर्ष का था, एंड दे हैड टू कवर 1,05,000 किलोमीटर डिस्टेंस, और इन्हें अपनी 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करना था। तो नरेटर कहता है कि अपनी जो 3 वर्ष की 1,05,000 किलोमीटर लंबी जो आयोजित यात्रा का जो फर्स्ट फेज था, जो प्रथम चरण था, वो अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ केप टाउन तक बड़ी हंसी खुशी के साथ व्यतीत किया। मीनिंग दैट वाई दे कंप्लीटेड द फर्स्ट फेज ऑफ देयर जर्नी हैप्पीली। उन्होंने बड़े हैप्पीली अपना जो फर्स्ट फेज ऑफ द जर्नी था वो कंप्लीट किया। देयर बिफोर हैविंग रीच्ड
वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, और क्या है कि वहाँ से ईस्ट की ओर बढ़ने से पहले हमने 2 और क्रूमैन लिए, 2 और नाविक लिए, जो कि जिनमें एक अमेरिकन था और एक स्विस था। अमेरिकन लैरी विजन एंड स्विस हर्ब सीगलर, जिसमें एक अमेरिका का था जिसका नाम लैरी विजन था, और दूसरा स्विस का था स्विट्जरलैंड हर्ब सीगलर, to help us tackle one of the world's toughest seas, the Southern Indian Ocean. इन दोनों क्रूमैन को साउदर्न इंडियन ओशन में समुद्र की लहरों का सामना करने के लिए, जिससे कि वो हमारी हेल्प कर सके, हमने इन्हें अपने साथ किया। 2 क्रूमैन, अमेरिकन लैरी विजन एंड स्विस हर्ब सीगलर। On our second day out of Cape Town, we began to encounter storm gales. तो कहते हैं कि जब हमने केप टाउन से यात्रा आरंभ की, तो केप टाउन से यात्रा आरंभ करने के दूसरे दिन हमारा जो मुकाबला था, हमारा जो एनकाउंटर था, वो स्टॉर्म गेल्स, बड़ी बड़ी शक्तिशाली समुद्री लहरों और हवाओं से होने लगा, प्रबल तूफान से होने लगा। For the next few weeks, they blew continuously, और वे अगले कुछ सप्ताह तक लगातार चलते रहे। They kept on blowing continuously. Gales did not worry me. तो देखिए नरेटर कहता है कि ये जो तूफान था इसकी मुझे चिंता नहीं थी, but the size of the waves was alarming. लेकिन जो समुद्री लहरों का साइज था वो परेशान करने वाला था। अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज अवर मेन मास्ट, जो कि हमारी बोट के मेन मास्ट से लगभग 15 मीटर तक ऊंचा था। ओके स्टूडेंट्स, so that's all today. We shall go through the next lecture in the next video. Thank you.